YouTube channel Gyanvanji Modern English School. We have completed 3 chapters of 9th class. Yes, student. Today we are going to start chapter number 4 of science, air and water. Yes, air and water. So first of all, we will do hard work of this chapter. So please, student, take out your notebook and pencil and note down. Now write hard words of this chapter. First, atmosphere. A-T-M-O-S-P-H-E-R-E. Atmosphere. Next is second, temperature. T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E. Temperature. Next is third, depend. D-E-P-E-N-D. Depend. Next is blanket. B-L-A-N-K-E-T. Blanket. Next is 5, oxygen. O-X-Y-G-E-N. Oxygen. Next is 6, unique. U-N-I-Q-U-E. Unique. Next is 7, air pressure. A-I-R-P-R-E-S-S-U-R-E. Pressure. A-I-R-P-R-E-S-S-U-R-E. Air pressure. Next is 8, moisture. M-O-I-S-T-U-R-E. Moisture. Next is 9, determine. D-E-T-E-R. Deter. M-I-N-E-S. Determine. Next is 10, surrounded. S-U-R-R-O-U-N-D-E-D. Surrounded. Next is percent. P-E-R-C-E-N-T. Percent. Next is evaporation. E-E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. Evaporation. Next, increase. I-N-C-R-E-A-S-E-S. Increases. Next, नेक्स्ट क्या होगा? वेदर. W-E-A-T-H-E-R. वेदर. नेक्स्ट, सी ब्रीज. 50. S-E-A-C-B-R-B-R-E-E-Z-E. Sea breeze. Next is afternoon. A-F-T-E-R. After. N-O-O-N. Noon. Afternoon. Next, towards. T-O-W-A-R.
क्विकर, QUICKER, क्विक। नेक्स्ट एक्सपोजर, EXPOPOSURE, exposure। Next is humidity, HUMIDITY, humidity। Next is condensed, condensation, CON DENSATION, condensation। Next is 22, deposited, DIPOSITED। Next frost, FROST, frost। Next is dew, DEW, dew। Next is mist, MIST, mist। Next hailstones, HAILSTONES, hailstones। Next plague, ice crystals, ICE, CRYS, TALS, ice crystals। Next is particles, PARTICLES, particles। Next is represented, REPRESENTED, represented। Okay, now we will revise next again. First, AT, atmosphere, ATMOSPHERE, atmosphere। Okay, next temperature, temperature that means तापमान। Okay, जो TEMPERATURE, temperature। Next depend, DEPEND, depend। Next BLANKET, blanket। Next is fine, oxygen, OXYGEN, oxygen। Next UNIQUE, unique। Next is AIR, air, PRESSURE, pressure। Next MOIS, moist, TURE, moisture, moisture that means नमी। ओके, जो कि हवा के अंदर नमी आती, जब बादल हो जाते हैं तब हवा में क्या होते हैं, कूल हो जाती है और उसके अंदर नमी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट DETER, DETER, MINES,
डिटरमाइंस, डिटरमाइन किसी भी टाइम को जब हम निर्धारित करते हैं वो उसका मीनिंग होता है डिटरमाइन, टाइम को निर्धारण करना। ओके, नेक्स्ट सराउंडेड, SURROUNDED, सराउंडेड। नेक्स्ट परसेंट, PERCENT, परसेंट। नेक्स्ट इवापोरेशन, EVAPORATION, इवापोरेशन। नेक्स्ट ENINCREASES, इंक्रीज। नेक्स्ट वेदर, WEATHER, वेदर। ओके, नेक्स्ट SEACBREEZE, सी ब्रीज। AFTER, after, NOON, noon, afternoon। Next TOWARDS, towards। Next QUICKER, quake, quake का मीन quaker। Next EXPOX, exposure। Next HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स भी क्या होता है, नमी होती है। ओके, नेक्स्ट CON1DENSATION, कंडेंसेशन। नेक्स्ट DIPOSITED, डिपोजिट। नेक्स्ट FROST, फ्रॉस्ट। नेक्स्ट DEW, ड्यू। MIST, मिस्ट। नेक्स्ट HAIFL STONE, hailstones। नेक्स्ट ICEICE CRYSTALS, crystals, ice crystals। नेक्स्ट PARTI, party, CLES, skulls, particles। नेक्स्ट represented, REPRESENTED, represented। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक। Have you written, student? Now we will understand of this chapter. Okay, student. So first of all, we will choose the correct answer in all yellow box. Okay, yellow box के हम क्या करेंगे? Choose the correct answer को fill up करेंगे. Okay, तो first
30 and last one 3. Percent of the earth, percent of the earth surface. Next is weather keeps changing. Keep changing. Changing. Blends frequently. 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 First option is frequently. Second option once in a while. Once in a while. And last third option is really. RARELY. Okay. Next third is we get a pleasant sea breeze. Sea breeze blank. First option is at night. Second option in the afternoon. In the afternoon. And last one is early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. Okay. Now we will choose the correct answer. Okay. So, question 1. Water cover about first 70%, 30% या 3%. So water cover about 30% of the earth surface. अर्थ का जो लगभग 70% कवर है पानी से. अर्थ का जो एक पार्ट पर जो हमारा सरफेस है अर्थ का वो कितने परसेंट कवर है? लगभग 70% कवर है. ओके, तो राइट आंसर इज 70. Okay, water cover about 70% of the earth's surface. Next, weather. Weather keep changing frequently. Once in a while, मतलब कभी हो जाता है. Then rarely या first frequently. So right answer is frequently. Okay. Next, let us see next question. We get a प्लेजेंट मतलब बहुत ही सुहावना, आनंदमय मौसम. ओके, तो वी गेट अ प्लेजेंट सी ब्रीज एट नाइट, इन द आफ्टरनून या अर्ली इन द मॉर्निंग. सो राइट आंसर इज सी ब्रीज में हमारा जो प्लेजेंट मौसम होता है वो होता है इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय. ओके, इन द मॉर्निंग, नो एट नाइट. ओके, तो वी गेट अ प्लेजेंट सी ब्रीज in the afternoon. Okay, student, please student note down.
Now we will understand first topic of this lesson. Okay. अर्थ इज यूनिक प्लैनेट ऑन द अर्थ जो है क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है, बिकॉज इट हैज टू थिंग्स नॉट फाउंड ऑन अदर प्लैनेट, जो कि दूसरे प्लैनेट पर नहीं, ऐसी दो थिंग्स हमारे अर्थ पर है। वो कौन कौन से हैं? वो है वाटर एंड एयर, हवा और पानी, जो कि किसी अदर प्लैनेट, जो हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं उस पर नहीं है, ओनली अर्थ पर ही है। इसलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। ओके, अबाउट 70% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। यस, अर्थ का जो 70% पार्ट जो है किससे कवर है? पानी से कवर है, और ओनली 30% इज लैंड, और अर्थ पर ओनली 30% ही लैंड है, जिस पर हम क्या कर सकते हैं? अपना क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने मकान बना सकते हैं और हम रह सकते हैं। ओके, ओनली 70% जो है हमारा अर्थ का पार्ट कवर है पानी से। ओके, याद रखना, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, डिफाइन ऑफ एटमॉस्फेयर स्टूडेंट। तो व्हाट इज डिफाइन एटमॉस्फेयर स्टूडेंट? अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, हवा के ब्लैंकेट्स के द्वारा हमारा जो चारों साइड से अर्थ क्या है? सराउंडेड है, उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेदर। वेदर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, यू हैव सीन वेदर कीप चेंजिंग एवरी टाइम और एवरी डे। ओके, वेदर जो है ऑल टाइम चेंज होता रहता है। कुछ समय में क्या होता है, आप देखते हो बहुत तेज धूप होती है, और थोड़े 1-2 घंटे के बाद में धूप चली जाती है और हमारा क्या हो जाता है? बादल हो जाते हैं। यस, और थोड़े ही समय में 2-3 घंटे के समय ऐसा लगने लगता है कि पानी आ जाएगा, बारिश होने शुरू हो जाएगी। यस, सो बी वेदर कीप चेंज ऑल द टाइम। ओके, टाइम समटाइम्स इवन ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ डे। वेदर डिपेंड ऑन एयर टेम्परेचर, air pressure and amount of moisture in the air at any time। किसी भी टाइम हवा किस पर डिपेंड करता है? वेदर। वेदर जो है हवा की टेम्परेचर डिपेंड करता है, एयर का जो प्रेशर है कि तेज हवा चल रही है, फास्ट बहुत स्पीड में हवा चल रही है या स्लो हवा ब्लो हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। एंड हवा में मॉइस्चर के अमाउंट पर भी डिपेंड करता है कि हवा में कितना मॉइस्चर है, उसके ऊपर भी वेदर डिपेंड करता है। ओके, बट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन वेदर इज हीट फ्रॉम द सन। बस वट वेदर सबसे अधिक जो है माने मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अरे ओके, एयर का प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, एयर अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द इन द एयर होता है, बट हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वो हमारा क्या है? सन। सन की हीट से, सन की जो हीट है उससे जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है चेंज होता है, उसको के ऊपर हमारा इंपोर्टेंट डिटरमाइन किया गया है वेदर, मतलब निर्धारित किया गया है वेदर को। ओके, द टेम्परेचर ऑफ अ डे डिपेंड अपॉन द हीट वी रिसीव फ्रॉम द सन। सन से हमें जो रिसीव होती है हीट, उसके ऊपर दिन का जो टेम्परेचर पूरा उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे बहुत तेज गर्मी होती है, बहुत धूप निकली होती थी, तब हमारा क्या होता है? हाई टेम्परेचर था, गर्मी बहुत तेज लगने लगती है हमको। यस, और यदि गर्मी तेज धूप नहीं होती है तब हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। ओके, नेक्स्ट, एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। यदि हीट इज मोर
अधिक गर्मी होने के कारण हवा क्या होती है, ऊपर की राइजअप होती है, ऊपर की ओर उठती है। ओके, एंड इंक्रीजेज और एंड एयर प्रेशर डिक्रीज, हवा का जो प्रेशर होगा कैसा होगा, डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स कम हो जाता है, एंड एवापोरेशन इज इंक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, हाईलाइट अंडरलाइन द पॉइंट, दिस पॉइंट। एयर प्रेशर डिक्रीज एंड एवापोरेशन इंक्रीज। जब हवा का प्रेशर डिक्रीज होता है उस टाइम हमारा जो है एवापोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, एवापोरेशन किसको लीड्स करता है, एवापोरेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड रेन। एवापोरेशन जो होता है क्लाउड और रेन के फॉर्मेशन को लीड्स करता है, आगे बढ़ने में नेतृत्व करता है। ओके, सो रेन डिपेंड अपॉन द सन एंड टू एक्सटेंड द एयर टेम्परेचर। इसलिए रेन जो है किस पर डिपेंड होती है, सन, और टू एक्सटेंड द एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर एयर के जो टेम्परेचर को एक्सटेंड करता है उस पर रेन जो है रेन जो है डिपेंड होती है सन पर, सन के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी हाउ टेम्परेचर इफेक्ट लैंड एंड वाटर। कैसे, अब हम देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर जो है अफेक्ट करता है लैंड और वाटर पर। लैंड ऑलवेज बर्न ऑफ फास्टर। जब सूर्य की रोशनी बहुत अधिक पड़ती है तब हमारा लैंड कैसा हो जाता है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है। देन द सी, और सी का जो वाटर होता है वो इतना गर्म नहीं है उसकी अपेक्षा। दोनों की कंपेयरिंग करें कि सी का वाटर गर्म होता है या लैंड, तो हमारा उस दोनों में हम कंपेयरिंग करने पर लैंड जो होती है वो फास्टर गर्म हो जाती है देन द सी। इट ऑल्सो कूल फास्टर देन द सी। ए भी हो कि कूल फास्टर देन द सी, और वो फास्टर कूल भी हो जाता है। लैंड जो है फास्टर क्या होता है, गर्म भी होता है, फास्टर कूल भी हो जाता है देन द सी। सी के कंपेयरिंग में दोनों काम उसके जल्दी होते हैं, फास्ट गर्म भी होता है, कूल भी होता है। ओके, नाउ वी विल राइट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। Important points. First we will write here Earth is unique planet.
atmosphere. Next is third point. Weather depends on air temperature, air pressure, and the amount of moisture. Amount of moisture in the air. Next is evaporation leads to formation of clouds and rain. To formation of clouds and rain. Okay. Next is not all student. Have you written, student? ओके, सो इस चैप्टर के ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने नोटबुक में लिखना है और हार्ड वर्ड भी आपको फिर नोटबुक में लिखना है. तो टुडेज होमवर्क इज राइट हार्ड वर्ड, write hard words, of lesson 4. Okay, write hard word of lesson 4 in notebook one time and important points. Thank you. Have a nice day. Take care. Okay, we will meet in next video.